Okay. Okay, ma'am. Assalamu alaikum. I am Sidra, one of the senior registrar today. What is your name? My name is Aisha. Ma'am, teaching है ना? जी teaching है. Okay, how are you? I'm fine. What about you, Sidra? How are you, Aisha? I'm fine, Sidra. Thanks for asking. Yes, ma'am. I'm fine. Um, okay. Is everything fine in the department? I heard that you are new into the department. Yeah, everything is fine. Just usual, things that happens in the first few days. Um, so everything is fine so far. So good. Thanks for asking. Okay, Aisha, I came to know that you want to learn about PopQ system. Why you want to learn about it? Yeah, I want to learn about it because, it fantasizes me how just a graph or a grid of, boxes can lead to diagnosis and management of the patients. Also, the other day, I was in outpatient department and we were examining a patient there with a senior, and she was explaining it to everyone that how you are going to, do things. But I grabbed a few points, but not much of it. So I was intrigued, so that I wanted to learn. So someone told me that you are here, senior one, and so that I made a request that please ask Dr. Sidra to teach me. So here I am to Okay. learn it from you. What do you know already about it? Anything you Uh, know? I know about it, like it's a quantification, the scoring system for uterovaginal prolapse, and there are some points on the prolapse part and the normal anatomy, and when we calculate them, then we can quantify the degree of the prolapse, and but not so much so clear, or I'm not very sure about the anatomy. That's amazing. Okay, that's amazing. You know good about it. Then today we will learn about it together, and I will tell you about the classification of the PopQ system and its advantages, and then we will also plot it on the grid. Okay, Aisha. Yeah, So sure. we Please will proceed. start with Mm-hmm. definition. Mm-hmm. Okay, so we will start with the definition. PopQ system is a classification system which is developed by the Urogynecological Association, which classify the and stages the pelvic organ prolapse. Okay, Mm-hmm. it has advantages that it is a objective. It gives us objective measurements, and so it avoids inter-observation errors, and also it can be used in the scientific papers, and different people in the world uses it, and that had the same quantification. So before the PopQ system, we have, whenever we are examining a patient, or we start to examine the patient, we have to first take the history examination, and we have to confirm her details and take consent from the patient, and then we ask the patient to empty her bladder and rectum, and then we will move toward the examination. So first of all, we will see that where is the hymenal remnants. That is the reference point for the six points in the PopQ system, and the three points in the PopQ system that does not depend on the hymen. So first of all, we will ask the patient to lie in the dorsal position or left lateral position, or it can be done in the standing position also. So when the patient lies down, we first depress the posterior wall of the vagina and see the anterior wall for any descent. A point is 3 centimeter above the hymen, and the A P point and B A point is the most distant portion of the most distant portion of the anterior vaginal wall, and the C point is the most distant portion of the cervix, or when patient has hysterectomy, it is vaginal cough. Likewise, we will depress the anterior vaginal wall and see the posterior vaginal wall. In the posterior vaginal wall, we will see similar points like AP, BP. AP is minus 3 centimeters, 3 centimeter above the hymenal ring, and BP is the most distant portion on the posterior vaginal wall.
and the D portion is is a pouch of Douglas. So we will measure them with the ruler, and then plot it on the grid, the upper portion and the lower portion. Then um, if the prolapse is below the hymen, quantify in plus numbers, and if it is above the hymen, we will quantify in negative numbers. Then after that, we will measure the 3 points which are not dependent on hymen, like genital hiatus, pubic perineal body, and total vaginal length. For the genital hiatus, we will measure it from the middle of the hymen to the urethra, and the perineal body, we will measure it from the middle of the hymen to the anus, to the anal opening, and the total vaginal length. Then we will reduce the prolapse, and we will measure the total vaginal length from the hymen to the pouch of Douglas. We will plot it on the grid. These 3 portions which are not dependent on hymen will be plotted in the middle row. Okay, Aisha, did you understood what I have told? Yes. I got a few points. Yes, I'll ask you a few questions when I need them. Okay. Can you tell me C point? Can you tell me the C point? C point is cervix, leading point of the apical prolapse, Aisha, can if you it tell me the happens. C point? Yeah, it's C is for cervix, Okay. and that is the Okay. leading point of the apical prolapse if it does happen. Okay. Then we will also ask the patient to stand and bear down, and then we will confirm our findings also on that. Mm. After that, we will thank the patient and complete examination. So, Aisha, do you want to ask anything? So how do we plot these things in this grid, and how do we Hello? am I audible, Dr. Sidra? Am I audible? Yes. Yeah, Yes, I just yes, wanted to ma'am. know if you can give me an example of how we can plot, the points on this grid and get diagnosis out of this picture. Um, uh, uh, do you want to tell me about this picture? Just any picture. Just give me an example. That maybe a cystocele or a UV prolapse, stage 2, 3, or how are the Okay, if stages, the how we stage them. Yes. okay, if this is urethral, if there is retrocele, the AA point will come down. Like Mm, it can be in the plus number. And if it is mm, the systolic, BA point come down. And if mm, it is a uterovaginal prolapse, uterocervical prolapse, then C point and D point will come down. They will be mm, in the positive numbers. And when there is a rectocele, then BP point will come down. And when there will be interoceles, then AP point will come down. And also, if the patient is had a hysterectomy, then D point will not be there. And if the patient has elongated cervix, then the C point will be in the will come down, but the D point will be at its original point, original place. So So how we the stage this prolapse? AA point and Mm. okay. Um It can come down the stage zero anywhere, no? is when Mm, all stage zero is where all the points are at their normal places. Like AA point is AA, BA, AP, and BP point is at the -3, and the C point and D point is also at its own place. That is, C point or D point is less is TVL -2. Whatever the total length is, we will minus it by 2, and then that number will be equal to or less than C point and D point. And then the stage 1. Stage 1 is when these points are greater than um, less than or equal to -1. And stage 2 is when these points are within -1 or +1. And the stage 3 is when these points are greater than +1.
And when we and to differentiate the stage 3 and stage 4, we will do we will take help of TVL. If the point is less than TVL, it will be stage 3, and if the point is greater than TVL, it will be stage 4. Did you understood? Yeah, somewhat. So, how do we, treat these stages, or what is the treatment dependent on the type of stage, or you just treat the same way to all patients in prolapse? No, Hmm. no. It depends on stage Mm-hmm. and patient I want age, to know. patient fertility desires. Hmm. So, what if someone is having a stage 3 prolapse for If anterior patient wall or wants posterior hysterectomy wall? or the sexual desires of the patient. Hmm. For anterior wall and posterior wall, we can, if the patient wants surgery, Hmm. we will offer her anterior repair or posterior repair, Okay, okay, depending upon the prolapse. okay. Um, Anything else, Dr. Sidra, you want me to know? Um, no, Okay, so how we wind up the station? use some video links and or study material, so you can also study it and practice it. And Hmm. whenever the patient come with the UV prolapse, I will call you and we will do Mm-hmm. it together on the patient also. Thank you so much, Dr. Sidra. It was very helpful. Okay. Thank you. I appreciate. Okay. अच्छा जी, Thank सिद्रा you डन so या much. कुछ ऐड करना है आपने? नहीं मैम. इट वाज अ वंडरफुल अटेम्प्ट. जस्ट जो टीचिंग का स्टेशन है, आई थिंक इसकी मैंने एक वीडियो भी डाली थी फेसबुक के ऊपर. पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी. अच्छा, इसमें ना शुरू में आपने बहुत अच्छा किया. आपने कहा कि आप नई आई हैं, मैंने आपको देखा है डिपार्टमेंट में. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छा किया. फिर उसके बाद आपने उनसे पूछा कि आप क्यों लर्न करना चाहती हैं, तो उसने कहा ऐसे ऐसे. तो आपने कहा हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. जब भी आपने उनसे पूछना है कि व्हाई यू वांट टू लर्न, प्लीज अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फर्स्ट. ठीक है, आपने उनको कहना है कि आई अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू आर such a young comer. It's just a few days that you are in department and you already want to learn and increase your knowledge or skill level. ठीक है, यार इंटरेस्टेड हो या इन्वेस्टेड हो अपनी लर्निंग के अंदर. ठीक है, सबसे पहले आपने उनको अप्रिशिएट करना है. नंबर 2 पॉइंट पे, यू वांट टू रूल आउट बुलिंग. ठीक है, आपने जब पूछा ना इज एवरीथिंग फाइन इन द डिपार्टमेंट, वहां पे आप बेशक बुली का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आपने रूल आउट करनी है बुलिंग को. कई दफा हो सकता है कोई बंदा उसको बुली कर रहा हो, इसलिए वो चाहता हो कि मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ सीख लूं और जो है ना मैं कंसल्टेंट बन जाऊं, आइंदा कोई मुझे बुली ना करे. ठीक है, कोई मुझसे पूछे, कहीं पे कई दफा लर्निंग में भी लोग बुली करते हैं. ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर भी होता है कि आपको लर्निंग में लोग बुली करते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर आपने उनको कहा कि व्हाट यू ऑलरेडी नो, उन्होंने बता दिया आपको कैसे ऐसे मैंने देखा. तो वहां पे फिर जब आपने स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि पेल्विक फ्लोर की एनाटमी आपको आती है कि नहीं आती. सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको पता है कि नहीं पता, क्योंकि डी लेंसी सपोर्ट सिस्टम का हमेशा एक सवाल होगा. ठीक है, तो अगर वो आपको बता देते हैं, ये इसलिए हम्म. आपको बता रही हूँ सारा हम्म. कुछ, कि अगर उनको टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स आती है कि नहीं आती, डी लेंसी का पता है कि नहीं पता, पॉप क्यू तो तीसरा है जो डेफिनेट है कि आपने समझाना ही समझाना है. लेकिन एक मोटी मोटी बातें पूछ लो कि उसको कहो ठीक है, फिर हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं एनाटमी को या टाइप्स को, जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लेते हैं, एंड सो दैट वी कैन क्विकली प्रोसीड टू द टॉपिक दैट वी वांट टू लर्न टुडे. ठीक है, आपने पहले पूछना जरूर है. अगर उनके पास क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ लेंगे. अगर उनके पास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 10 मिनट का स्टेशन है ना, 10 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, तो आपने उनसे हम्म. पूछ लेना है कि डू Okay. यू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोलैप्स, how it is divided into three compartments: anterior compartment, middle compartment and posterior compartment. पहले उनको बताओ pelvic cavity is divided into three compartment. ठीक है, anterior compartment holds bladder with the urethra, middle compartment holds the uterus, cervix and vagina, and the posterior compartments hold the rectum, anal canal and the gut loops in the pouch of Douglas. ठीक है, so if the normal supports we divide into D Lancey classification system: level 1, level 2, level 3. Level is at this level, 1 is this, level 2 is this, level 3 is this. Whenever level 1 will go, this will be affected. Whenever level 2 will go, this will be affected. Whenever level 3 will go, this will be affected, and this will be the result. ठीक है, so quickly coming to the हम्म. POPQ system.
लेट्स हैव अ Okay. लुक। अच्छा, अब काफी देर बोलती रही आयशा सो गई, ठीक है। बीच में हर ऐसे 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद ना आपने पूछना, आर यू विद मी, आर यू गेटिंग मी, इज एनीथिंग यू वांट मी टू रिवाइज, ओके रिवाइज दिस फॉर मी। क्योंकि 10 मिनट में, चलो 1 मिनट बाद तो पूछ ही लो ना। पूरा पॉप क्यों हमने पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, आयशा को पता ही नहीं चला ए और बी, बी ए में क्या फर्क है। ठीक है, ये समझ रहे हो। बीच बीच में ना अंडरस्टैंडिंग लाजमी चेक करनी जी है, और मैम। हाँ बहुत ज्यादा चेक करनी है आपने लाजमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे करना है। अच्छा, जो आपने पॉप क्यू सिस्टम पढ़ाया ना, उसमें आपने एक गलती सबसे पहले की, क्या आपने उनको बताना था कि हम ये किसने बनाया है। तो हाँ, ये बताओ किसने पॉप क्यू बनाया है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यूरोगोनिकोलॉजिकल यूरोगोनी एसोसिएशन। नहीं ना, उसने नहीं बनाया। जो बात नहीं पता वो गलत नहीं बोलनी, ठीक है। अच्छा। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सोसाइटी आईसीएस ने बनाया ये सिस्टम, पॉप क्यू ओके। सिस्टम, ठीक है। तो नेवर मेंशन आर रॉन्ग रेफरेंस। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, वो आपको नेगेटिव मार्किंग इस बात पे जरूर देंगे कि ये स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, गलत बता रही है, मतलब ये बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप गलत बताएंगे, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सोसाइटी हैज मेड दिस इन 1996, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहां से अभी तक ये चल रहा है, अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। Before that, we had systems, but they were having, subjective classifications, but this was the maximum effect, effort, or maximum an effort to put this system into an objective system to reduce inter-observational bias, inter-observer bias, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ हमें पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का, कि इंटर ऑब्जर्वर बायस को हम कम करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अलावा आपने इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा, अब आपने इंटीरियर वजाइनल वॉल की लेंथ आपको नहीं आती ना, पोस्टीरियर की आती है, आती है नहीं बताई, क्योंकि आप वहां गोल बोल कर गए। वट एवर द लेंथ ऑफ द वॉल, स्टेज 3 में TVL-2 हो गया, वट एवर द लेंथ ऑफ द वॉल। आप उनको बताएं द एंटीरियर वजाइनल वॉल इज generally around 8 centimeter on average, and the posterior vaginal wall is on average 10 centimeter। फर्क है इन दोनों वॉल्स के अंदर, इसलिए इंटीरियर का प्रोलैप्स -5-6 पे फर्क होगा, और पोस्टीरियर का प्रोलैप्स 5-6 पे फर्क होगा, ठीक है। इंटीरियर को कंप्लीट प्रोलैप्स के लिए +8 चाहिए, और पोस्टीरियर को +10 चाहिए। यहीं से ग्रिड अपनी यूजफुलनेस आपको बताती है। ये जो नंबर्स है ना, जब तक आपको नॉर्मल नंबर्स नहीं पता होंगे हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें एक एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये था कि आपने ये बताया ही नहीं कि, चलो आपने 3 कहा ना कि 3 मेजरमेंट्स बगैर उसके हैं, जिनको किसी पॉइंट की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों को, इनमें सिर्फ TVL के अलावा, टोटल वेजाइनल लेंथ के अलावा, बाकी जो आपके 8 पॉइंट है, इन सबको वालजालवा की जरूरत है। मैक्सिमम पुशिंग एफर्ट, ये मैक्सिमम स्ट्रेनिंग के ऊपर आपने ये चेक करने हैं। ये मेंशन करना आप भूल गए, ठीक है। ओनली टोटल वेजाइनल लेंथ इज द ओनली मेजरमेंट जो आपने नॉर्मल पोजीशन में करानी है, और बाकी सबको उनको कहना है बियर डाउन करें, ताकि मैक्सिमम जो भी नीचे आना है वो आ जाए, ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल एप्लीकेशन और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज का जो है ना, ये चेक पॉइंट था, ठीक हो गया। फिर आपने बताया एंटी ए वजाइनल ए पॉइंट्स आर बोथ, और उनकी एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस है। -3 आपने बता दिया कि 3 सेंटीमीटर अबव दें। अच्छा, इसमें जो आपकी फाइंडिंग थी ना, जेंटल हाइटस, और ये भी थोड़ी सी वर्डिंग इसमें खराब थी, मैं बताती हूँ आपको भी, ठीक है। जेनिटल हाइटस को हमने मेजर करना है, मिडल ऑफ द हाइमन नहीं होता बेटे वर्ड कुछ भी, मिडल ऑफ द हाइमन कोई वर्ड नहीं होता। आपने इसको कहना होता है कहाँ से, ये देखो, ये पोस्टीरियर फॉरशेट का लफ्ज आपने यूज करना है। ये पिक्चर सबको नजर आ रही है, हेलो, पिक्चर सबको नजर आ रही है। जी मैम, नजर आ रही है। जी, ये देखें ना, आपने उनको बताना है कि genital hiatus is measured from the middle of the urethral meatus to the posterior foreshet, ये posterior foreshet है, ठीक है। और जो पेरिनियल बॉडी है, posterior foreshet से लेके एनल कैनाल तक की ओपनिंग तक हम इसको करते हैं। अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है तो सारी फाइंडिंग -3 पे ही आपने बता दिया उनको, ठीक है। ये देखो जरा, ये देखो, आपने उनको बताया कि एंटीरियर वॉल के ऊपर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज बोथ ऑन द एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल,
we notify it with a small a for the anterior wall and small p for the posterior wall. They are 3 centimeter above the hymen. Hymen is our reference point, and whatever is above the hymen will be marked in minus numbers, and whatever will be the below the hymen will be marked in positive numbers. uh, this junction in the anterior wall -3 is the urethrovesical junction, and this junction at the posterior wall is anorectal junction. ठीक है, -3 क्यों हमने बनाए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अब समझ आ गई आप लोगों को कि ए पी पॉइंट फिक्स क्यों है। ये एनोरेक्टल जंक्शन है और यूरिथ्रोवेसिकल जंक्शन है आपके 3 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक हो गया। देन इफ एवरीथिंग सी विल बी 8 सेंटीमीटर अबव द एंटीरियर वजाइनल वॉल, ठीक है, हाइमन एट द एंटीरियर वजाइनल वॉल, so if it is in at place this will be -8, if AA is at place this will be -3, if AP is at its place this will be -3, ठीक है। if total vaginal length is intact and D is at its own place, normal place, तो जो आपकी TLV है ये तो वैसे 10 ही रहती है, ये खत्म नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो C पॉइंट है ये हमने क्या कह दिया, ये -8 के ऊपर है। फिर BA -3 है। अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है तो जो B पॉइंट्स है A और B के ऊपर ये भी -3 के ऊपर ही होंगे, बिकॉज द B पॉइंट ऑन द एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल डिफाइंस द लीडिंग एज ऑफ द प्रोलैप्स। वो जितना अपनी जगह से, जिस वॉल का प्रोलैप्स अपनी जगह से जितना हिला हुआ होगा वो उतना ही हम उसकी फाइंडिंग दे देंगे। ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गया जो बी पॉइंट है उसका कॉन्सेप्ट, कि बी पॉइंट अगर सब चीजें अपनी जगह पे है, कोई प्रोलैप्स नहीं है, तो -3 पे ही होगा जहां आपका ये है ए पॉइंट। और बी पॉइंट असल में लीडिंग एज है उस वॉल के प्रोलैप्स का। फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर वॉल का जो प्रोलैप्स है उसका जो लीडिंग एज है वो बी ए है। वो जिस फाइंडिंग पे भी होगा आप वही कैलकुलेट करके लिख देंगे कि बी ए इधर है। बी पी लीडिंग एज है पोस्टीरियर वॉल का, जो भी प्रोलैप्स होगा वो जितना नीचे होगा, जितना अपनी जगह से हिला हुआ होगा, जो फाइंडिंग होगी आप उस पर लिख दोगे -2 -3 -5 +1 +2 +3 +5। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने उनको क्या देना है, आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनको ये देना है कि जो स्टेज 3 और 4 है, जो आपने स्टेजेस बताई पहले वो बिल्कुल ठीक थी, जो स्टेज 3 एंड 4 है। अच्छा, सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया सिचुएशनल अवेयरनेस, बैकग्राउंड नॉलेज, एजेंडा, पर्पस ऑफ पॉप क्यू। We can use it every day with patient counseling to get them a better understanding in their condition and to do so in a much more effective time period without about pelvic anatomy and urinary incontinence. ठीक है। Stage 0 is when there is no pelvic organ prolapse. Stage 1 is when the leading edge of prolapse remain 1 centimeter above. अब अगर एंटीरियर वॉल -8 पे है तो -7 भी स्टेज 1 है, -6 भी है, -5 भी है, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी, यहां तक ये सारा एंटीरियर वॉल का स्टेज 1 प्रोलैप्स है। इसी तरह आप आ जाए -9 से लेके -2 तक, ये सारा पोस्टीरियर वॉल का स्टेज 1 प्रोलैप्स है। ये समझ आ गया सबको? हम्म, ये समझ आ गया सबको? ठीक है। तो अगर वहां पे कोई मैम ग्रिड पड़ी हुई, जी जी, ये अगर रिपीट कर दे प्लीज, जी जी मैं कर रिपीट देती कर हूँ। दे। आपकी एंटीरियर वॉल है टोटल -8 तक, और पोस्टीरियर वॉल है -10 तक। ठीक है। हमने कहा कि ये हाइमन हमारा 0 रेफरेंस है, और -1 और +1 ये हमने कह दिया कि 0 +1 -1 ये स्टेज 2 है। ठीक है। तो इसके ऊपर जितना भी है ये स्टेज 1 है। जब ये अपनी अपनी जगहों पे -8 या -10 पे है तब तो ये 0 प्रोलैप्स है, लेकिन ये डिसेंट आ गया -7 स्टेज 1, ये इंटीरियर वॉल की बात कर रही हूँ, -6 स्टेज 1, -5 स्टेज 1, -4 स्टेज 1, -3 स्टेज 1, -2 स्टेज 1। एंटीरियर वॉल के ग्रिड पे वो ए या बी को इनमें से कोई भी फाइंडिंग आपको दे दें, ए तो -3 से नीचे आएगा ना, वो यहाँ -2 होगा। ठीक है, यहाँ -1 होगा, अगर -1 हो जाएगा तो स्टेज 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर वो आपको दे देते हैं बी, अब आपने इसमें किस क्या देखना है, बी ए की फाइंडिंग देखनी है। वो या -7 होगी, या -6 होगी, या -5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, ये आपको बताएगी कि एंटीरियर वॉल का प्रोलैप्स क्या है। ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब ग्रिड अगर वहां पड़ी हुई हो और आपको डायग्नोसिस बनाना हो और मैनेजमेंट बनानी हो तो आपको पता हो कि ये कौन सा डिग्री का प्रोलैप्स है, ग्रिड पढ़ के आपको समझ आ जाए। ठीक है। पोस्टीरियर वॉल में अगर वो आपको देते हैं -9 -8 -7 टिल -2, ये सारा प्रोलैप्स आएगा किसमें, स्टेज 1 में।
ठीक है, स्टेज 2 हमने कहा -1, 0 और +1, ये स्टेज 2 है। ठीक हो गया। इसी तरह जब ये अंदर से सारा कुछ बाहर आ गया, 0 से नीचे आ गया, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का कॉन्सेप्ट दोबारा वहां पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या, TVL -2 स्टेज 3 है और इसके ऊपर स्टेज 4 है। ये समझ आ गया आपको? तो अगर वो एंटीरियर वॉल के लिए कहेंगे कि वो है जी प्लस, अब एंटीरियर वॉल क्या है, -8, यानी कि 8 सेंटीमीटर है, तो -2 क्या बना, 6। ठीक है, तो 6 से नीचे जितना होगा प्लस में, यानी +2, +3, +4, +5, ये सारे आएंगे स्टेज 3 में। +6, ये इंटीरियर वॉल की बात कर रही हूँ, +7, +8, दिस विल बी स्टेज 4 फॉर द इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स। ये समझ आ गया आपको? जितना आपने ऊपर प्रोलैप्स को काउंट किया था -1 के ऊपर, इसी तरह आप +1 के नीचे भी उसको इसी तरह काउंट करेंगे। तो हमने कहा कि TVL -2 हमारे पास क्या बना, 3। तो हमने देख लिया इंटीरियर वॉल के लिए फर्क है, वो 8 में से माइनस करना है, आपने -6 किया, आपने -2 किया तो 6 बन गया। तो 6 एंड अबव इज स्टेज 4 एंड 6 से नीचे +1 के अंदर जितना भी है स्टेज 3 है। ठीक है, और इसी तरह आप पोस्टीरियर वॉल को देखेंगे तो पोस्टीरियर वॉल में प्लस क्या है, 10 है टोटल, तो 10 में से -2 करेंगे, क्या बना, 8। तो +8 +9 +10, सॉरी 10 तो नॉर्मल है, +8 +9 क्या है, +10 नहीं सॉरी, ये कंप्लीट प्रोलैप्स में, स्टेज 4 में। ठीक है, और इसके नीचे +7 तक, यानी +1 से लेके आगे जो +2 है, +2 से लेके +7 तक ये स्टेज 3 होगी। ये समझ आ गया कि नहीं आया? बेटे नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूंगी, लेकिन बताओगे तो पता चलेगा ना। हाँ हम्म, जी, आगे। ये समझ आ आगे। गया हम ना? आगे। गुड, हाँ जी, हाँ इट जी। वॉज गुड इनफ। आपने गुड। उनको ऐसे ही बताना है। जब तक आपको स्टेज 3 स्टेज 4 का पता नहीं होगा, TVL का जब तक आपको एनेटमी नहीं आती ना, मैंने कल भी ये परसों भी ये बात कही थी, जब तक आपको एनेटमी नहीं आती तब तक काम नहीं चलेगा, ये प्रोलैप्स में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आपने उनको स्टेजें समझा दी, फिर आपने उनसे बीच बीच में पूछ भी लिया सारा, ठीक है, और पॉइंट्स आपने समझा दिए। ये अब आगे देख लो। मैंने कहा कि उसको आपने पहले इलस्ट्रेशन, क्योंकि अगर वहां डमी पड़ी हुई है ना, तो आपने थोड़ी सी आपने उसको इलस्ट्रेशन लाजमी देनी है कि जो है ना ये कैसे होता है। अच्छा ठीक है, मुझे सही याद था, 1996 में ही आया था, तो ये आपने पढ़ लेनी है स्लाइड्स। ये जब मैं करूंगी, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें लिखी ज्यादा बातें वही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, सिर्फ ये कि इंग्लिश के वर्ड्स ही आपको बता देंगे कि ये क्या क्या है। वो बहुत अच्छा आपने बताया कि जब हिस्टेक्टमी हो जाएगी तो सिर्फ C होगा, D खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रिड में जब देखा कि यहाँ D पे 0 लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको वहीं बता दो कि ये क्या है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये मैंने आपको बताना था, ये हमने कर लिया है। हिस्टेक्टमी हो गई है तो पॉइंट D नहीं है, C जो है ना वो वॉल्ट होगा। ठीक हो गया। If no prolapse, AA will remain at -3. BA most distal portion of the remaining upper anterior vaginal wall. In the absence of prolapse, BA is equal to AA and it has -3. Severe prolapse coincides BA with C. समझ आ गया? BA क्या है, लीडिंग एज है। स्वेयर प्रोलैप्स एंटीरियर वॉल का क्या हो गया, तो सर्विक्स पूरी बाहर निकली हुई है, तो उन्होंने कहा BA इक्वल हो जाएगा C के। ठीक है, +8 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये डी लेंसी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो मैं आपको बता रही थी। लेवल 1 इज यूट्रोसैक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट सपोर्ट, यूट्रस और वॉल्ट को सप्लाई करता है, सपोर्ट करता है। ये जो मिडिल कंपार्टमेंट है ना, इसको हम एपिकल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ये यूट्रस और वजाइना जो है, इसको हम एपिकल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। आपने कहना है लेवल 1 सपोर्ट जब भी जाएंगी, एपिकल कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स होगा। ठीक है, लेवल 2 में पेल्विक फेशियास एंड पैराकोल्पोस जब भी जाएंगे, तो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स होगा ज्यादा, और लेवल 3 जब जाएगी तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो फेशिया है जिसकी हमने कल बात की थी, VH और एंटीरियर रिपेयर में, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, प्यूबो रेक्टाइलिस, ये जितने फेशिया हैं, व्हाइट लाइन, आर्कस टेंडिनस, ये सारे उसके अंदर आ रहे हैं। एंडोपेल्विक फेशिया जितना और उसके एक्सटेंशन है ना, वो सब लेवल 2 में आ रही है। तो लेवल 2 में आपका एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स होता है। लेवल 3 में आपकी ये पेरिनियल बॉडी जाती है, लिवेटर एनाई जाता है, लोअर 1/3। तो फिर उसमें आता है आपका क्या, रेक्टोसील और एंटेरोसील ऊपर से आएगा। ठीक है, प्रोजिडेंशिया का एक दफा आपने उनको लाजमी बताना है। ठीक है, इनकी ग्रिड्स जो है ना, मुझे याद दिलाना, मैं आपको ना जो ग्रिड्स हैं एग्जांपल्स के साथ वो मैं व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है,
तो ये सारी आपने थ्योरी पढ़ लेनी है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हम्म। कॉन्सेप्ट सबको समझ जी आ गया? मैम। जी। तो जब आपने बीच बीच में उनसे पूछ लिया, तो एंड पे आपने उनके साथ क्लोजर कैसे करना है, टीचिंग सेशन का क्लोजर सबका ऐसा ही है। आपने उन्हें कहना है, आई होप इट वॉज अ हेल्पफुल सेशन, प्लीज गिव मी फीडबैक फॉर माई टीचिंग एज वेल, सो दैट आई कैन improve माई सेल्फ, एंड आई एम गिविंग यू RCOG एंड नाइस, क्योंकि नाइस की गाइडलाइन है। और उनके मैं आपको लीफलेट्स दे रही हूँ, उनके रीडिंग मटेरियल दे रही हूँ, वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट एंड डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज don't hesitate to ask me anytime, and next time whenever I'll be examining a prolapse patient or making a grid for a patient, I'll definitely call you. So I thank you for coming, and वो भी थैंक यू करेगी, और यहाँ बात खत्म। ठीक हो गया? अपनी टीचिंग का फीडबैक लाजमी लेना है, उसको रिसोर्सेज लाजमी देने, और अंडरस्टैंडिंग पूछ लेनी है। बीच बीच में भी इसलिए पूछने हैं क्योंकि अगर उसके पास कोई सवाल होगा और आप अभी तक वो नहीं बता सके उसको टीचिंग में, तो वो आपसे पूछ लेगा बंदा। ठीक हो गया? ये सबको क्लियर हो गया पॉप क्यू टीचिंग का, या नहीं हुआ? हम्म। हाँ जी, हो गया। ठीक हो गया। रीबा को आगे समझ, और किसको आई है? आयशा, खदीजा, नौरीन, सिद्रा, और किसको आई है? जी मैम, समझ आ गई। आ गई है, पक्की बात है? आप कर लोगे इसको सही? टीचिंग किसी भी किस्म का स्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहता है टीचिंग आप ना, मतलब स्टेशन आप लोगों का आया था कि इसकी ब्रीच डिलीवरी इसको पढ़ाओ, ठीक है? शुरू और आखिर हर टीचिंग स्टेशन का यही है। हेलो, माय नेम इज सिद्रा, आई एम वन ऑफ द R4 इन द डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार इन द डिपार्टमेंट। आई सी दैट यू आर न्यू इन द डिपार्टमेंट, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन सो फार, is there any problem that can help you with in the department? I have come to know that you are interested to learn the breech delivery. May I know why you want to learn it? वो कहेगी यूं 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 यूं, जो भी उसका होगा, जो भी उसके पास नोट्स होंगे, तो आपने कहना आई हाईली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन योर लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू योर कैरियर। Can you tell me what you already know about the breech delivery? Do you know the types of the breech? What is called a breech? उसको पता ही ना हो breech क्या होता है, ठीक है? What is a breech presentation? What are the types of the breech? Have you seen a normal cephalic vaginal delivery? Do you know the mechanism of labor or movements of baby through the pelvis during labor? Do you have any idea regarding the pelvis? ठीक है? ये बैकग्राउंड उससे पूछोगे तो वहां से आगे चलेगा, ताकि आपको पता चलेगा मैंने इसको क्या बताना है। जहां वो कह देगी ना नहीं मुझे एनेटमी नहीं आती, इसका मतलब है तुमने एनेटमी पढ़ानी है। जहां वो कह देगी मुझे पेल्विस का नहीं पता, इसका मतलब है तुमने पेल्विस बतानी है। जहां वो कहेगी मुझे मैकेनिज्म ऑफ लेबर का नहीं पता, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे, इसका मतलब है उसके पास सवाल है और ये काम आपने करना है वहां पे। ठीक है? बैकग्राउंड और ये सारी बातें पूछने का फायदा ये होगा कि आप स्टेशन में ब्लाइंड नहीं होंगे। ठीक हो गया? फिर आपने एक पोर्शन बता दिया, फिर पूछा हाँ जी सब कुछ ठीक है, सो गुड सो फार। फिर दूसरा स्टेशन, या आप ये जो एंड पे अगर फीडबैक आप भूल जाएं, कि होता है कई दफा जल्दी में, तो शुरू में तो आप बड़े फ्रेश होते हैं, जब सेशन शुरू होता है आप शुरू में भी कह सकते हैं। उसे कहते हैं ओके आयशा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एंड आई प्रोसीड टू टीच यू अबाउट दिस टॉपिक, let me just tell you that at the end of this topic I will be sharing reading material with you and the website link from where you can have a depth of your knowledge regarding this topic. And also I want you to give me a feedback for my teaching, so that I can improve myself as well, my teaching skills as well. ठीक है? So let's start ऐसे। ठीक है? क्लियर हो गया? हम्म। चैट बॉक्स में लिखते हैं, बोलते नहीं है। अच्छा जी, नरीन कह रही है यस मैम। ठीक है जी, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक नेक्स्ट स्टेशन करते हैं हाइपर इमेसिस का। पॉप क्यू के अलावा आज हमारा एक हाइपर इमेसिस था, और क्या था? एक HIV भी। HIV किसने करना है? टर्नर टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम है। तो हाँ अगर जी। टर्नर का स्टेशन मैंने ना बनाया हो तो फिर, वैसे हम फिल बदी भी कर चलो सकते हैं, कोई कोई बात बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या था टर्नर का स्टेशन, बताओ। नहीं। ठीक है, ठीक वाइवा क्वेश्चन थे। है। पता नहीं, वो शायद फातिमा ने शेयर किया था। हाँ, उसने कहा था कि
एक पिक्चर थी। शेयर की हुई थी, पिक्चर जी शेयर की जी, हुई थी, पिक्चर थी हाँ जी। कैरियोटाइपिंग की। वहां से आपने उन्होंने फिर हम्म, स्ट्रक्चर डिस्कशन पूछा था। तो देखो उसको हम डिस्कस कर सकते हाँ हैं जी। ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर पिक्चर को होगी तो पहले ज्यादा ज्यादा आइडेंटिफाई उन्होंने करना है। डायग्नोज करने के लिए हाँ। पूछा होगा ना आपको। हाँ जी। डायग्नोसिस टर्नर का दिया तो आइडेंटिफाई नहीं किया, होगा। हाँ जी, हम्म। डायग्नोसिस, हाँ जी। हम्म। और आइडेंटिफाई हिस्ट्री और किया, फिर एग्जामिनेशन के उसके पॉइंट्स पॉइंट्स पूछ पूछ रहे थे, लिए वो कि कह रही है। जी जी, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हाँ जी। पॉइंट्स हैं जी। तो हिस्ट्री में हम वो एज ऑफ मोनार्की जैसे नहीं स्टार्ट हुई एलएमपी, तो उसकी सिस्टर की और मदर की पूछेंगे कि एज ऑफ मोनार्की क्या है। नहीं फिर अरीबा, हम उसके ऐसे नहीं सेकेंडरी पूछेंगे। सेक्सुअल करेक्टर। आप इंग्लिश में मुझसे पूछें, इंग्लिश में मेरे से पूछें। ओके। हम्म। Assalamu alaikum. I'm Dr. Ariba. I'm ready to proceed. First of all, I will take the biodata of the patient, confirm the demographic detail, then हम्म। name, age, occupation, and education. हम्म। Then ask about her LMP, age of menarche. If, yet she is not menstruating, that check her secondary sexual characteristics, and हम्म। ask about the age of menarche in her mother and sister. Then rule out all the possible causes of the amenorrhea. Then I would like to ask about her any history of weight gain, any history of headache, blurring of vision, any history of nipple discharge, any history of medication she is taking, like any type of radiation she is taking. Or then I would like to ask about any history of anorexia nervosa, any history of exercises, and any history of head injury or trauma or any surgery related to it. Then I would like to ask about her past medical history, a family history, surgical history, any type of any history of drug allergy. Then examine the patient. Her BMI is very important to rule out the BMI is important. Then check her vitals. हम्म। Check her check her secondary sexual characteristics, हम्म। like breast examination, axillary hair, and then vitals, and then do her abdominal examination to any mass in the abdomen, any tenderness, and then check her local examination, vulva and vagina. Either it is a female pattern or a male pattern, and pubic hair. And then I will not, and then any bluish discoloration at the hymen to rule out imperforated hymen. हम्म। Then after that, go toward the investigation. All baseline investigation and specific. In specific, ultrasound is very important to rule out either uterus is present, ovaries is present, any hematocolpus or hematometria, and then rule out all. Then do her FSH, LH, TFTs, serum prolactin level, and at the end the karyotyping to rule out any other chromosomal abnormalities, or to confirm the diagnosis. Once the diagnosis is confirmed by karyotyping that it is a Turner syndrome, then I will go toward the management of the patient. I will counsel the patient and the family that she had a Turner syndrome, and I will explain involve the multidisciplinary team in which I will involve the senior gynecologist, psychologist, and psychiatric. Give her support, lifestyle modification, because she had other problems like cardiovascular, thyroid. Uh, I would advise her calciums and minerals, and meanwhile I would start her hormonal replacement therapy, and up till the age of a 51 year. Continue that. Before the age of menarche start only estrogen. After that, OCPs will be start up to the age of the 51 year, and give her support. और Mm, and follow up the patient on, and psychological support. Give her psychological support. एनीथिंग एल्स मैनेजमेंट में? हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट, तीनों बताने थे। And then, as a fertility concern is very important, that I will explain her that she had a streak ovaries. Then हम्म। she should conceive by the ovum donation, but this is not acceptable in our country. Then I would explain her that about the only option is the adoption. और Or almost देखो, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया।
इसमें ना दो तीन बातें हैं जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जी। एक मिनट, जरा मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूं पहले। देखो, इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते थे जब हमने किया। सबसे पहले हमने कैरियोटाइपिंग देख ली तो हम पता तो चल गया ना कि टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है। तो हिस्ट्री में जब आपको एज पता चल गई सबसे पहले कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एज ही नहीं है, तो किसी एज का पेशेंट आए, आपने एज से ही आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट के कंसर्न्स क्या होंगे और पेशेंट जो है ना उसको हमने लेके कैसे चलना है। फॉर एग्जाम्पल प्री प्यूबर्टल एज में है, या प्यूबर्टल एज गुजार चुकी है, या अब कोई 40-50 की एज में है, या 30s में है, उसके कंसर्न्स अलग होंगे। 16 साल की प्राइमरी एमिनोरिया के कंसर्न्स अलग हुए। 30 ईयर्स में या 40 जो आई है उसका फर्टिलिटी कंसर्न होगा, उसके कंसर्न्स और होंगे। 40 में जो एमिनोरिया के साथ आई है उसमें आपके कंसर्न्स और होंगे, उसके कंसर्न्स और होंगे। ये बात समझ आ गई है? तो सबसे पहले तो आपने वहां सिनेरियो में देखना है कि प्राइमरी एमिनोरिया की तरह से आई है, तो आप ये सारी बातें करोगे जो अभी आप कर रही हो। ठीक है। क्योंकि प्राइमरी एमिनोरिया में आपने कहा मैं हाइमन को भी देखूंगी, मैं ब्लूइश बल्ज को भी देखूंगी, मैं मैस को भी देखूंगी, मेट्रोकोलपोस मेट्रा सारा कुछ देखूंगी। लेकिन मैं देखूंगी तो ये नहीं देखूंगी कि पेशेंट का थायराइड एग्जामिनेशन पे कैसा है, पेशेंट का हार्ट कैसा है एग्जामिनेशन पे, चाहे कैरियोटाइपिंग मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। मैं ये भी नहीं देखूंगी पेशेंट की हाइट कितनी है, एवरेज हाइट है, नॉर्मल हाइट है। उसके अलावा ओबेसिटी तो ठीक है, वजन ज्यादा होता है, लेकिन वो हाइट भी छोटी होती है। प्लस मैं देखूंगी उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी वेब्ड नेक तो नहीं है, शील्ड साइड चेस्ट तो नहीं है। ठीक है। मैं कैरिंग एंगल देखूंगी उसका। है रीबा? कुछ भी नहीं देखेंगे? कभी पीरियड्स आए नहीं आए, चलो ये तो पूछ लिया आपने। अगर आए हैं तो अब वो जाहिर है वो मोजाइक होगी ना फिर टर्नर, अगर आए हैं कभी तो। नहीं तो जी प्राइमरी जी। एमिनोरिया ही होता है, क्योंकि स्ट्रीक ओवरीज होती हैं। ठीक है। जीरो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप है, कभी कोई ना कोई पीरियड्स आए हैं तो इसका मतलब मोजाइक होगी। ठीक है। अगर मोजाइक है तो वो जाहिर है कोई फर्टिलिटी कंसर्न के साथ होगी ज्यादातर, क्योंकि पीरियड्स आते हैं फिर रुक जाते हैं या आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पूरा सिनेरियो आपके पास जब आए तो आपने गौर से देखना है। प्री प्यूबर्टल गर्ल है, प्राइमरी एमिनोरिया है, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है, प्राइमरी सब फर्टिलिटी है। सॉरी, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी नहीं होगी, प्राइमरी होगी। लेकिन कोई मोजाइक है क्या है? 40 के बाद तो जाहिर है आपने उसको कार्डियक हेल्थ पे डालना है, उसकी बोन हेल्थ को देखना है आपने, और उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, सारा कुछ ही देना है। ठीक है। 16 पे भी प्राइमरी एमिनोरिया में आपने उसकी स्ट्रीक ओवरीज देखनी है या मोजाइक का लेवल देखना है। इस रिपोर्ट की डिटेल मुझे चाहिए कैरियोटाइपिंग की, कि ये टोटल XO है या बीच में कोई मोजाइक पैटर्न भी है। ठीक है। उसके अलावा फिर मैं मैनेजमेंट करूंगी एग्जामिनेशन पे। पहले बाकी चीजें तो देख लो ना। ना आपने उससे हिस्ट्री में भी नहीं पूछा उसको कोई थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। प्राइमरी एमिनोरिया के कॉजेज आपने सारे पूछे हिस्ट्री में, लेकिन अगर यही सेकेंडरी एमिनोरिया के साथ आ जाए तो सबसे पहले आपने उसकी प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया में पीसीओएस, प्रोबलेक्टिनोमा, जो आप बीच में पूछ रहे थे, आप मिक्स पूछ रहे थे, आप प्राइमरी भी पूछ रहे थे, आप सेकेंडरी भी पूछ रहे थे। ठीक है। आपने लेकिन वहां एग्जाम में लाजमी गौर से देखना है कि प्राइमरी एमिनोरिया है या सेकेंडरी एमिनोरिया है। प्राइमरी एमिनोरिया तो जाहिर है आप आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन को भी देखोगे, हेड इंजरी को भी देखोगे, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म को भी देखोगे, आप उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, हाइट को देखोगे। प्राइमरी एमिनोरिया के दो ही फ्लो चार्ट है ना, एक नॉर्मल हाइट के साथ है और एक शॉर्ट हाइट के साथ है। ठीक है। फिर सेकेंडरी एमिनोरिया तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करोगे, फिर पीसीओ रूल आउट करोगे। ठीक है। फिर और चीजें देखोगे, थायराइड को देखोगे। ठीक है। फिर उसके हाइपोथायराइड को देखोगे, उधर सॉरी हाई पिट्यूटरी को देखोगे, हाइपोथैलेमस को देखोगे। ठीक है। फिर एग्जामिनेशन में आगे, इन द एग्जामिनेशन क्या क्या, मैं बीएमआई देखूंगी, मैं हाइट देखूंगी, मैं उसका बीपी पल्स देखूंगी, हाइपरटेंशन होती है इनमें, मैं उसकी बिल्ट को देखूंगी, इस चीज शॉर्ट हाइटेड, वेब नेक, कैरिंग एंगल, वाइडली स्पेस निपल्स। ठीक है। देन टेनर स्टेजिंग, हार्ट को ऑस्कल्टेट करूंगी, कोई कार्डिक मरमर तो नहीं है, थायराइड को स्पेशली देखूंगी, थायराइड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। ड्राई स्किन तो नहीं है, थायराइड की चीजें मुझे फिजिकली भी नजर आ जाएंगी, पल्स कैसी है, रेगुलर रेगुलर, टैकी है, ब्रेडी है, ठंडे हाथ तो नहीं है। थायराइड का पूरा एग्जामिनेशन है ना। फिर उसके मैं देखूंगी जी, abdominal एग्जामिनेशन मैंने किया, फिर लोकल एग्जामिनेशन किया, वहां पे भी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो पेशेंट है जिनमें हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देखूंगी सेकेंडरी, वहां पे भी प्यूबिक हेयर भी देखोगी ना। फिर उसके बाद मैं देखूंगी ब्लाइंड एंडिंग वजाइना तो नहीं है कोई, वो तो नहीं है अगर प्राइमरी एमिनोरी है। ठीक है। और बाय मैनुअल पे यूट्रस का साइज क्या है, ओवरीज क्या है, स्कैन फिर मैं देखूंगी। जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिपेंड करेंगी फिर जो फाइंडिंग्स मेरे पास आएगी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे। मैनेजमेंट पे भी आपने सबसे पहले यही कहना है कि मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ऑफ द पेशेंट एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है। एक तो जनरल मैनेजमेंट होगी जो हर टर्नर की होती है, और दूसरी स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ द पेशेंट, उसके मुताबिक मैनेजमेंट होगी। ठीक है। जनरल मैनेजमेंट क्या होगी?
कि हम इनको बताएंगे, चाहे वो प्राइमरी एमेनोरिया वाले, सेकेंडरी हैं, पीओएफ की तरफ जा रही है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही है, मोजाइक है, जो कंसर्न जनरल बनता है उनका आपने वो बताना है। ठीक है। सेकंड, अगर उसको पहले पता है, नहीं पता ये डायग्नोसिस, अगर टर्नर उसको नहीं पता कि मैं टर्नर हूँ और वो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आई है, तो ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज भी है ना। तो जब आप मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि आई एम्पैथेटिकली एक्सप्लेन द डायग्नोसिस टू द पेशेंट। एम्पैथी का लफ्ज लाजिम इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ऑल्सो एंड आई आस्क हर इफ शी वांट टू अकम्पनी समवन टू गेट अ सपोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डायग्नोसिस, व्हाट डज इट मीन फॉर हर एंड हर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ लिविंग हर लाइफ इन अ हेल्दी वे। दोनों कंसर्न्स बताने हैं ना। फिर मैनेजमेंट उस हिसाब से होगी। अगर पीरियड्स लेके आने तो पहले हम उसको एस्ट्रोजन रेजीम पे डालेंगे, फिर हम ओसीपीज पे डालेंगे टिल द एज ऑफ नॉर्मल मेनोपॉज। ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं उसका फर्टिलिटी कंसर्न है तो वो जो आपने बताया अडॉप्शन एंड एग डोनेशन। ठीक है। मुल्क में अलाउ क्यों नहीं है? मुल्क में नहीं, उसको रिलीजियसली हमें अलाउ नहीं है। हमारे क्रिश्चियन भी रहते हैं तो वो भी अलाउ नहीं करते। ठीक है। मुल्क में रूल भी कोई नहीं है, ना इस्लाम हमें इजाजत देता है, ना मुल्क में अभी इजाजत हुई है, ये रूल ही पास नहीं हुआ। तो जो हमारे सोशल सर्कमस्टेंसेज हैं उनके मुताबिक वो अडॉप्शन कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो कहें कि नहीं 40+ है, पीओएफ के साथ आई हुई है टर्नर, तो अब क्या करना है? तो अब जाहिर है उसको एचआरटी, मीनोपॉजल सिम्टम्स आपने देखने हैं, बोन हेल्थ देखनी है, कार्डियक हेल्थ देखनी है। तो मैं उसका थायराइड कराऊंगी अभी, हार्ट को देखेंगे हम, उसके लिपिड प्रोफाइल को देखेंगे, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी इन चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये समझ आ गया मोटा मोटा सबको? जी 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 जी। ठीक है। यस मैम। हरीबा के अलावा किसको समझ आया है? यस मैम। आ गया बेटे? खदीजा को आ गया, और यस। किसको आया? मैंने 3 दिन से वैसे एक फर्टिलिटी का भी डाला हुआ है केस, लेकिन किसी ने उसका वॉइस मैसेज नहीं भेजा अभी तक। फर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस किसी ने भी नहीं की, मैंने एक स्टेशन भेजा था। हम्म। चलो। एचआईवी किसने करना है? हम्म। एचआईवी किसने करना है बच्चों? ट्राई तो करो। बोलने की प्रैक्टिस ही होती है, और क्या होता है। हम्म। खदीजा आप कर लो। मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया हूँ। प्रेयर नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं। वैसे क्लिनिक पे कोई एचआईवी पेशेंट को कहते हैं तुम R4 आ गया तुम्हारे पास, ऑन द बिहाफ ऑफ योर कंसल्टेंट यू आर गोइंग टू सी दिस पेशेंट, और ये लैब्स हमने करवाई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ ना, तो आईजीजी पॉजिटिव आ गई है। अब आपने फोकस हिस्ट्री क्या लोगे एक एचआईवी के पेशेंट में जिसका एचआईवी पॉजिटिव आ गया? एक तो मैं नॉर्मल करूँ? एंटीनेटल हिस्ट्री लोगे उससे। ठीक है। यस। एलएमपी पूछ लिया आपने, उससे पूछ लिया कि हाउ डिड शी कंसीव, जैसे हम नॉर्मल एंटीनेटल लेते हैं। नॉर्मल कंसेप्शन थी, ट्रीटमेंट के साथ हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया, वांटेड है अनवांटेड है, फिर उसका फोलिक एसिड ले रहे नहीं ले रहे, नोजिया वोमिटिंग प्रेगनेंसी है कि नहीं। उसके बाद आप उनसे क्या पूछेंगे? अभी आप कितने वीक्स हो गए हैं इनटू योर प्रेगनेंसी, उस हिसाब से ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री ले ली सारी। फिर आपने उनसे स्पेसिफिक एचआईवी के क्या पॉइंट्स पूछोगे? एनी वेट लॉस की हिस्ट्री, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स और पररेक्टल ब्लीडिंग। करीबा उससे पहले क्या पूछोगे? ये तो एडवांस एचआईवी में होगा ना, उससे पहले क्या पूछोगी? उससे पहले जो है इसकी रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री पूछो ना। रिस्क फैक्टर्स। ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ द पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन, जी जी, ऑक्यूपेशन। ठीक है। कोई शेयर नीडल्स, ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री, ड्रग्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई डेंटल प्रोसीजर तो नहीं कराया आपने किसी अनस्टेरिलाइज जगह से? ठीक है। ये इस कोई बार्बर शॉप या किस तरह, इस तरह आपके हस्बैंड इस तरह की अनहाइजेनिक जगहों पे तो नहीं जाते जहां से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो शेयर्ड चीजें होती हैं, वहां से कोई हस्बैंड कैरी करके आया और इसको लग गया हो? ठीक है। प्रीवियसली आपको पता है कुछ अपने स्टेटस के बारे में कि नहीं पता? अब आपको अपनी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता? ठीक है। फिर हिस्ट्री में और क्या पूछोगे?
इज इट योर फर्स्ट मैरिज, या प्रीवियस कोई शादी हुई है कि नहीं हुई। प्रीवियस पार्टनर्स के बारे में पूछोगे, कॉन्डम यूजेज के बारे में कॉन्ट्रासेप्शन में पूछोगे कि कॉन्डम यूज करते हो कभी कि नहीं करते। ठीक है। सेक्सुअल नॉन सेक्सुअल जितने भी ट्रांसमिशन के तरीके हो सकते हैं ना, वो सारी बातें आपने उनसे HIV पॉजिटिव पेशेंट में पूछनी है। ठीक है। फोकस हिस्ट्री हो गई, एग्जामिनेशन आपने कर लिया, पेशेंट से रिजल्ट कैसे डिस्कस करोगे। ब्रेकिंग बैड न्यूज करेंगे हम्म। और इस ब्रेकिंग बैड न्यूज में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत कि इंपॉर्टेंट है। पहले, इससे पहले हम कॉन्फिडेंशियलिटी की, या आप यानी कि आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को भी बुलाना चाहते हैं तो बुला लें लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम ये आपके और मेरे बीच में रहेगा। नहीं, ये आपके और तो मेरे अगर वो बीच में अभी नहीं डिस्कस रहेगा। नहीं करना चाहती। नहीं, वो नहीं करना चाहती का क्या मतलब है। अगर उसका हस्बैंड पॉजिटिव नहीं है एंड लेकिन जो है उसे ये शी इज बताएंगे। कैरिंग इट फ्रॉम हम्म। समवेयर एल्स, तो शी कैन ट्रांसफर इट टू हर फैमिली। हम्म। तो आपने उनको इनकरेज करना है। तो ये बात इसे बताएंगे ना कि अगर आप नहीं भी बताएंगे, इनकरेज करना है कि आप जो है डिस्कस कर लें तो बेहतर है, वरना ये आगे ट्रांसमिट होने में, आपके हस्बैंड में, फैमिली में ट्रांसमिट हो सकता है, बच्चों में। आपने उनको कहना है कि अ, ये आपकी रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल है, बट इट्स बेटर यू लेट योर पार्टनर नो फॉर द फ्यूचर सेफ्टी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड स्प्रेडिंग इट फर्दर। ये बिल्कुल उसको 100% आजादी नहीं देने की, वो ना बताए तो कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं होता। ये एक इस तरह की ये जो डिजीजेज होती है ना, इनमें आप पेशेंट सेफ्टी जो है ना, दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि एक HIV पेशेंट और अपने वो पार्टनर को नहीं बताना जी। चाहती कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, इनमें ये इस तरह के सर्कमस्टेंसेज है जहां कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने उनको एम्पैथी के साथ बताना है कि मैंने आई हैव कंफर्म योर नेम एंड MR नंबर फ्रॉम द रिपोर्ट, योर फुल ब्लड काउंट वाज नॉर्मल, you are immune to rubella, syphilis serology is negative, your blood group is O positive, and fortunately no atypical antibodies were seen, but I have an unfortunate news to share with you. I'm very sorry that I have to be the bearer of this news that your HIV IgG antibodies are positive. फिर उसमें तवक्कुफ करना है, थोड़ा वक्फा देना है ये बात मुंह से निकालने के बाद। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रही हैं। आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही फील करता। बट हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। ठीक है। HIV पॉजिटिव होने का क्या मतलब है और इसका असर आपके ऊपर या आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कैसे पड़ सकता है, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अम, बेहतर है कि आप अपने पार्टनर को खुद इसके बारे में इन्फॉर्म करें, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ठीक है। फिर जो भी वो दो चार बातें आपके साथ करेगी, उसके बाद आपने उन्हें बताना है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या प्लानिंग होगी, एंटीनेटल केयर कैसे प्लान करोगी। उसे जो है बताए, अभी ये प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है? जी जी, एंटीनेटल क्लिनिक में आई हुई है। LMP से आपको पता चल जाएगा ना किस ट्राइमेस्टर में तो है। अच्छा, फिर जो है मैडम, इसको जो है हम बताएंगे मैटरनल रिस्क और फीटल रिस्क बताएंगे। मैटरनल में जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में बताएंगे, रिकरेंट UTI हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, और जो है मैटरनल रिक्वायरिंग ऑफ द सिजेरियन सेक्शन हो सकती है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है, एनी हिस्ट्री ऑफ अगर प्रॉम हो। फीटल रिस्क में जो है कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती है, इफ शी इज टेकिंग एनी मेडिकेशंस एसोसिएटेड विद इट, मिसकैरेजेस, प्री फॉर्म की हिस्ट्री, प्री टर्म लेबर की, लो बर्थ वेट की हिस्ट्री हो उन्हें सकती है। बताएं कि वर्टिकल एच आई वी ट्रांसमिशन के बारे में एच बताएंगे। आई वी का मतलब ये है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में या इसके बाद भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रिस्क है। होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जरासीम से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। कुव्वत ठीक है। मुदाफियत कम हो जाती है। आगे। इसमें जो है आपकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाएगी, इसकी वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, जिसकी वजह से जब जब हम आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे, आपने आना है, और जो है कुछ मेडिकेशन है आपको जो है, जब यानी जब HIV बुलाएंगे तो वाले आपने डॉक्टर्स। आना नहीं है। नॉर्मल लोगों से आपको ज्यादा बार हॉस्पिटल आना पड़ सकता है। आना पड़ हाँ, सकता हम है। आपके लिए कुछ और स्पेशल जो है दवाइयाँ शुरू कराएंगे। ठीक है, लेकिन उससे HIV पहले आपके डॉक्टर्स। कुछ टेस्ट होंगे, कुछ खसूसी टेस्ट होंगे। क्या खसूसी टेस्ट होंगे। इसके लिए जो वायरल लोड हम मालूम करेंगे कि आपका वायरल लोड कितना है। उसको कैसे समझाओगी CD4 पेशेंट को काउंट। कि वायरल लोड मुझे समझ आ जाए, आपके जो मैं है ले मैन हूँ। कुछ स्पेशल टेस्ट हैं आपके जो कराने पड़ेंगे, जो आपके देखेंगे कि आपके
जिससे हमें इसके अगेंस्ट कितनी कुव्वत मुदाफियत है, वो वाले हम आपके टेस्ट कराएंगे, जिसे हम अपनी तिब्बी जुबान में वायरल लोड कहते हैं, CD4 काउंट कहते हैं। अरे वाह। तो वो आपके सीडी अंदर फोर कितना है। काउंट आपकी कुव्वत मुदाफियत है, तो वायरल लोड कुव्वत मुदाफियत है। नहीं नहीं, वायरल लोड कुव्वत मुदाफियत नहीं, वायरल लोड जरासीम की मिकदार कितनी है और हाँ। उसके खिलाफ लड़ने वाली आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत कितनी है। जी जी। आगे और क्या करेंगे, खुसूसी टेस्ट और क्या करेंगे आप? इसके अलावा हम आपके गुर्दों के टेस्ट कराएंगे, जिगर के टेस्ट कराएंगे, ताकि जो गुर्दों से मेडिकेशन आपको पहले स्टार्ट जिगर करना है के दवाइयाँ। कराएंगे। जिगर के, गुर्दों से जिगर पहले क्यों आपने बोला। जिगर का नाम लेना है। और अच्छा, ये जिगर के कराएंगे और गुर्दों के कराएंगे, ताकि हम्म। जो दवाइयाँ आपको स्टार्ट करनी है उसका असर आपके जो है गुर्दों जिगर दोनों पे होगा, आपकी दोनों पे होगा, इसलिए वो जरूरी है। और जो है इसके अलावा जो है हम आपको जब वो टेस्ट कराएंगे तो आपको जो दवाइयाँ स्टार्ट कराएंगे उसके मुताबिक HIV वाले डॉक्टर से मिलके, और उसका असर, दवाइयों का असर जो है आपके खून पे, ब्लड पे, जिगर पे और गुर्दों पे हो सकता है। आपको जो है शुरू में जो है आपको हम मंथली बेसिस पे बुलाएंगे, हर महीने बाद बुलाएंगे ART स्टार्ट करने के, फिर हम आपको 3 महीने के बाद बुलाएंगे जब आपका लेवल सेट हो एआरटी जाएगा। स्टार्ट कब करेंगे आप मेरी? ART स्टार्ट जो है अब डिपेंड करता है कि ये इसने अपने लिए करनी है या बच्चे के लिए। अगर ये आपने उनको ये ट्वेंटी बताना है कि आपके सेकेंड जो ट्राइमेस्टर स्पेशल में। टेस्ट हैं इनके मुताबिक आपको दवाइयाँ शुरू कराई जाएंगी। दवाइयाँ कब शुरू होंगी, इसका इन्हिसार आपकी रिपोर्ट के ऊपर होगा। अगर वो 1 लाख से ऊपर है तो तुम फौरन करा दोगी ना, ठीक है। वेट तो नहीं करोगी। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का कट ऑफ है। वो आपको याद होना चाहिए कि पहले ट्राइमेस्टर में स्ट्रेट अवे किन को शुरू करानी है, किन को अर्ली सेकंड में करानी है, किन को लेट सेकंड में करानी है, किन को थर्ड ट्राइमेस्टर में या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ओनली देनी है। ठीक है। तो उन्हें कहना है कि स्पेशल हम्म। दवाइयाँ कब शुरू होंगी ठीक और है। कितनी शुरू होंगी। इस बात का जो है ना फैसला तब होगा जब आपके स्पेशल टेस्टों की रिपोर्टें आ जाएंगी, उनके मुताबिक शुरू कराई जाएंगी। ठीक है। वो क्यों देते हैं हम हम्म। स्पेशल दवाइयाँ, क्यों देते हैं रीबा? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बोलो। स्पेशल दवाइयाँ क्यों देते हैं? इसकी, वाई वी गिव देम हार्ट? इसके वायरल लोड को जो है वायरल लोड को कम करने के लिए, और उसका इफेक्ट बच्चे पे वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए है। और वायरल लोड कम करने से क्या होगा? पेशेंट की हेल्थ के लिए और वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। और मोड ऑफ डिलीवरी पे भी इफेक्ट होगा ना। तीन चीजें मोड ऑफ इफेक्ट डिलीवरी होगी। पे भी इसका इफेक्ट होगा जी। जी, तीन मोड ऑफ चीजें डिलीवरी इफेक्ट पे भी होंगी। इफेक्ट होगा जी। कि आप एक तो नॉर्मल डिलीवरी आपके की तरफ जा के सकते हैं अंदर फिर। जो एक्टिव जरासीम है उनको ये कम करेगा। अब आपसे बच्चे को जो फैलने के चांसेस हैं उनको ये कम से कम करेगा। तीसरा, अगर ये हम इसको अच्छे खास हद तक काबू में ले आते हैं तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी मुमकिन हो सकती है। अदरवाइज हर सूरत आपका सिजेरियन होगा। समझ आ गई जी। है? हम्म। जी। फिर और क्या बताओगी इसको? फिर जो थर्टी है जब सिक्स पे हम उसने इसे कहा कि स्टार्ट पेशेंट करेंगे तो लीकिंग जो के है साथ आ गई। 36 पे लीकिंग के साथ आ गई और 97 36 पे इसका अगर वायरल लीकिंग लोड के था। साथ आ गई है। 97 था वायरल लोड। अगर वायरल लोड 50 से ज्यादा है और वो लीकिंग के साथ है तो हम सिजेरियन सेक्शन प्लान करेंगे। कैसे करोगे बताओ मुझे। If patient came at 36 weeks and her viral load is more than 97, then I will go, and she is having preform, then I will go for the emergency lower segment C-section. हम्म I will counsel the patient that situation, हम्म counsel the patient, हम्म और अच्छा, ये जो प्लीज एक चीज हम हिस्ट्री में हमने मिस कर दी कि जो खास इन्वेस्टिगेशंस है ना, ये देखें उसमें आपने CD4 काउंट, वायरल लोड, प्लस आपने स्क्रीनिंग करनी है दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए। ठीक है। प्लस आपने मेरे ख्याल से वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी तो आपने एन्युपलाइडी टेस्टिंग उसको बताई है, NIPT, जेस्टेशनल डायबिटीज एट 16 and 24 वीक्स बाय OGTT, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और जो ड्रग्स हैं जो आपने काट देनी है उसके अलावा आपने इसको वैक्सीन्स भी देनी होती हैं। ठीक है। जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं आपने इनको अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन भी देनी होती हैं। निमोकोकल एंड हाँ। इन्फ्लुएंजा हम्म। इन्फ्लुएंजल वैक्सीन जब आप शुरू में उनको बताएंगे तो आपने बताना है कि हम ये सारी दवाइयां प्रिस्क्राइब लेते करेंगे। रहेंगे। पहले आपको हर महीने हम चेक करेंगे, आपके वायरल लोड को देखेंगे, उसके बाद जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में एक दफा आपके वायरल लोड को देखेंगे। ठीक है। 36 वीक्स पे हम देखेंगे। अगर वो 50 या इससे कम है तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अदरवाइज आपका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है।
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो बच्चों वाले डॉक्टर वहाँ मौजूद होंगे उनको हम बताएंगे कि आपका ये स्टेटस है बच्चे का, उस हिसाब से बच्चे के भी कुछ खसूसी टेस्ट करने पड़ेंगे। आप बच्चे को अपना दूध किसी भी हालत में नहीं पिला सकेंगी। ठीक है, ये पूरा प्लान आपने उनको बताना है। ठीक है, फाइल पे हर जगह आपने मेंशन करना है पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, ताकि जो आपके जी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो जो उस स्टाफ इन्वॉल्व है उसकी केयर में, उन सबको पता हो कि एचआईवी पॉजिटिव है, उन्होंने अपनी कैसे करनी है सारी केयर। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन, ड्रग्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताना है कि आपने कॉन्डम यूज करना है अंटिल पार्टनर हैज बीन स्क्रीन्ड एंड फाउंड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके अलावा आपने यह है कि आपकी जो है पूरी वो एमडीटी के साथ होगी, जितनी भी मैनेजमेंट होगी। जब आप उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे डायग्नोसिस के बाद, जब आप मैनेजमेंट बताने लगेंगे ना, तो आपने वही उनको बताना है कि योर केयर विल बी अंडर टीम ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की टीम होगी जिनमें एचआईवी स्पेशलिस्ट होंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, मेरे सीनियर होंगे, स्पेशलिस्ट मिडवाइफ होगी जो एचआईवी में स्पेशलिस्ट होती हैं, जिनको ये पता होता है कि इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, समझ आ गया? क्या खास बातें पूछनी थी हिस्ट्री जी। में? ठीक हो गया। नजर आ रहा है ना क्लास में? चलो, ठीक हो गया, सबको समझ आ गया। आज का और क्या स्टेशन रह गया है? हाइपर मैसेज। हाइपर मैसेज किसने करना है? आयशा और सिद्रा चली गई हैं। हाइपर मैसेज बेटे किसने करना है? खदीजा, नौरीन। हम्म। बेटे किसने करना है हाइपर मैसेज? जल्दी करें। तो ये आपने टास्क असाइन किया हुआ था? जी जी। टास्क असाइन किया हुआ था हमें? टास्क असाइन ये किया हुआ था, यस। लेकिन वो है ही नहीं, प्रेजेंटर ही नहीं है। चले गए, आए थे मेरे ख्याल से शुरू में। हाइपर मैसेज तो मुझे लगता है मैंने पहले ही किया हुआ था, पिछली दफा ही कर दिया था किसी को। मेरे- एचआईवी फातिमा ने करना था, फातिमा नहीं आई। हाइपर मैसेज किसी ने चूज ही नहीं किया था, लेकिन पहले मैंने दिया था किसी को हाइपर मैसेज। नौरीन आप ट्राई करो। हम्म। हाइपर मैसेज ना मनाली के पास था, लेकिन वो आज आई नहीं है। नौरीन और खदीजा में से कोई नहीं इसको ट्राई करना चाहता? डॉक्टर, डॉक्टर का क्या नाम है? हम्म। अम, अम, आप सिनेरियो दे दे, ट्राई करते जी जी। सिनेरियो। बेटे ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है, ये देखें है सामने, पढ़े इसको। यस मैम। जी जी। हेलो। जी जी। जी जी खदीजा। मैम। अस्सलाम वालेकुम।
I am Khatija. I have read. जी मैम start करूँ? जी 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 History taking. I have read the scenario and ready for the task. Uh, First of all, I will introduce myself to the patient. Then I will complete my missing biodata. I will ask her name, age, educational status, merit for, and mode of deliveries. Has she came with the complaint of excessive vomiting? I will ask its duration, frequency, its onset, its severity, amount, and I will ask its color or associating feature like abdominal pain or abdominal pain or cramps. Uh, uh, hello, जी hello. जी 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 मैं सुन रही हूँ, आप Then I बोलते जाए। will take the history of has she is 11th week pregnant. I will take the history of I will take trimester wise history as it is spontaneous conception or assisted. How she confirm her pregnancy, whether it is a booked case or not, any investigation done, ultrasound done. In past, in obstetrical history, I will ask her previous mode of deliveries and previous ये मतलब इसको ये symptoms previous हुए हैं या नहीं. Hello. Then I will ask her past medical history, as she any history of the diabetes mellitus, hypertension, any history of the asthma and TB. In past surgical history, I will ask about any history of concerns. In drug history, I will ask about any allergy to drug, any any recreational drug history. In family history, I will ask about any history of the diabetes mellitus, TB or asthma. Then in journal physical examination, ma'am, I जी will जी do vitals. I will check her body. I will check her weight to calculate the body mass index. I will look for a pellar, jaundice. I will do the thyroid examination and sign of dehydration मैं देखूंगी इसमें. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे है शी इज प्रेग्नेंट तो मैं इंस्पेक्ट करूंगी, इंस्पेक्शन करूंगी और पाल्पेशन करूंगी. और जी जी इन्वेस्टिगेशन में मैम आई विल कंप्लीट दैट काउंट फॉर हीमोग्लोबिन with date and time. I will TLC, total leukocyte count and platelets, blood sugar random blood grouping, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and during complete examination for WBCs, sugar, protein and ketone. और इन स्पेसिफिक में है मतलब वॉमिटिंग हिस्ट्री है तो मैम हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी देखेंगे, LFT और RFT भी देखेंगे. और इसके अलावा बस मैम. जी अब ये स्कैन है आपका, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट वुड बी योर मैनेजमेंट प्लान फॉर द रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी। ये अभी मैनेजमेंट आपने कर ली है, स्कैन हो गया। द अल्ट्रासाउंड स्कैन शो अ मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी, hyperemesis settled within a few days and she was discharged home. She had a detailed scan at 20 weeks which confirmed the normal anatomy of both twins. You are now seeing her at 22 weeks. अब यही पेशेंट 22 वीक्स पे आ गई है। यहाँ से आगे मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी की विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरमेसिस। यहाँ से आगे मैम मैनेजमेंट क्या होगी इस पेशेंट की? मैम वही काउंसल करेंगे पेशेंट में अबाउट द डायग्नोसिस, इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड मतलब मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में इसको गाइड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अपनी इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम which include the senior obstetrician, medical specialist,
एंड रेडियोलॉजिस्ट, और हम्म मैम वही मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, और कितने वीक्स पर है, 20 वीक्स पर है, नीजा, अब हाइपरमेसिस सेटल हो गया है। और अब अल्ट्रासाउंड। आपको पता चल गया कि मोनोकोरियोनिक यस मैम। ट्विन प्रेगनेंसी है, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी आगे? यहाँ से आगे आप क्या करोगे? अगर सेटल्ड हो गई है मैम तो फिर सेटल हो गई है ना, 2 दिन बाद उन्होंने कहा सेटल हो गई है। अब यही पेशेंट दोबारा आपके पास 20 वीक्स पे आई है, और आपने स्कैन देखा है कि मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है। अब जो पहले प्लान आपने दिया था उसमें आगे क्या तब्दीली आएगी? टिल डिलीवरी, या इसका प्लान दो जरा मुझे। मैम फिर तो सेटल हो गई, फिर मतलब हाँ हाँ, तो आगे अब ये ट्विन ट्विन को चलाओ ना। मैम वही स्कैन करेंगे, 2 वीकली ग्रोथ स्कैन हम्म। वगैरह करेंगे। बताओ उसको कि यू आर नाउ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ अ हाई हिस्ट्री ऑफ रिस्क, हाँ यस मैम, हाई हाइपरमेसिस। रिस्क। हाँ जी, एंड हाइपरमेसिस हाँ। आपको हुआ था, अच्छा। आईयूजीआर हो सकता है आगे, प्लस यू आर अ हाँ हाँ। मोनोक्रियोनिक डायमियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। राइट। हाँ जी, तो वी विल बी पुटिंग यू ऑन ग्रोथ स्कैन्स every two अच्छा। weekly fortnightly growth scans from 16 weeks onwards। ठीक है? यस मैम। हाँ, and then we'll see you at 36 weeks, and the time of delivery will be 36 to 37 weeks। 34 वीक्स, यस weeks मैम। पे आपका plan of delivery 34 35 पे बन जाएगा। If everything goes fine and first baby is head down position, then we can deliver you vaginally as well। नॉर्मल, हाँ। हाँ यस मैम। जी। इफ नॉट, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है मीन टाइम, twin pregnancy puts you at a higher risk of developing diabetes, hypertension, preterm labor during this pregnancy, also growth problems due to sharing a single placenta by both babies, plus history of hypermesis। So growth scans will be there, if everything remains fine we will see you। और ये plan A है। Plan B, if the first baby is non-cephalic then we have to move on to abdominal delivery in your case। ठीक है? इतना मुश्किल ठीक है बात मैम। नहीं थी, परेशान क्यों हो गए? नहीं, यस मैम। हाँ, पेशेंट 34 वीक्स पे आई है अच्छा। और सब कुछ ठीक है। ओरल आयरन ले रही थी, उसको उसके ऊपर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, अब उसको ट्रबल सम वेरिकोज वेन्स भी आ गई हैं, लेकिन बीपी और यूरिन एनालिसिस नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड पे एक ग्रोथ की बच्चे की जो है ना वो टेलिंग ऑफ है, यानी कम हो रही है। लाइकर वॉल्यूम इन द लार्जल बेबी इज स्लाइटली इंक्रीज। देयर इज नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोप्स एंड सीटीजी इज रीअश्योरिंग। मिसेस जीएबी कह रही है कि मैं घर में अपनी डिलीवरी कराना चाहती हूँ, क्या कहोगी उसको? अभी नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट है। इसी यही पेशेंट है। आपने उसको प्लान ये देके हमने अच्छा। घर भेजा था ना कि हम आपको फोर्टनाइटली देखेंगे, और 34 वीक्स पे हम दोबारा देखेंगे, ग्रोथ थर्टी फोर स्कैन थर्टी करेंगे फाइव पे। बिल्कुल। हाँ, अब वो थर्टी हम्म, फोर थर्टी फाइव पे जो ग्रोथ स्कैन आपके पास आया है उसमें आया कि एक बच्चा थोड़ा सा छोटा है और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, एक का लाइकर कम है एक का ज्यादा है। क्या डेवलप हो रहा है? मैम ट्विन टू ट्विन फर्स्ट विजन। यस, हेलो। मोनोकोरियोनिक है ना, 15। यस यस, यस मोनोकोरियोनिक मैम। ट्विन, 15% रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीटीएस। यस ठीक मैम। है? ये मैडम सो 34 वीक के बाद 20 वीक्स के बाद तो कम हो जाता है इसका रिस्क टीटीएस का। नहीं, खत्म नहीं होता 16 से रीजा। 20 वीक्स के बीच में ज्यादा कम। होता है। हाँ जी, लेकिन आपने तो 20 वीक्स के बाद देखा ही अभी है 34 पे, आपके पास 34 पे आई है। अच्छा। ठीक है? और ये हम पूरी अगर रिस्क खत्म हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में भी नहीं होगा। रिस्क खत्म होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम उसी में ही प्रेजेंट करते हैं। अगर रिस्क खत्म हो जाता है तो कभी भी आप उसको पूरी प्रेगनेंसी में स्क्रीन ना करते रहते डिलीवरी तक। वो कहते हैं 16 से 20 में करो और बंद कर दो। वो क्या कहते हैं, फोर्ट नाइटली उनको स्कैन करते रहे जब तक वो डिलीवर होते। कट ऑफ दिया हुआ उन्होंने कि कब बंद करनी है स्क्रीनिंग। जो डाइकोरियोनिक है उनको आपने 24 वीक से स्क्रीनिंग शुरू करनी है, मंथली स्क्रीनिंग करनी है आपने डिलीवरी तक। ठीक है? 16 वीक्स में मोनोकोरियोनिक की शुरू करनी है, फोर्टनाइटली करनी है, और खत्म आपने डिलीवरी पे करनी है जब वो डिलीवर होंगी। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब ये यस मैम। टीटीएस की कौन सी स्टेज है, क्विंटेरो स्टेजिंग क्या है इसकी? मैडम 1 है। 1 है या 2 है, लेकिन वो ब्लैडर पे आपको कमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना आपको। ठीक ब्लैडर है? पे है। नहीं, ब्लैडर ब्लैडर विजिबल। अगर दोनों का ब्लैडर विजिबल है तो 2 है, अगर ब्लैडर का भी विजिबल ठीक है? 1 है, अगर ब्लैडर का भी विजिबल नहीं है तो 2 है। ठीक है।
अच्छा जी, 36 वीक्स में पेशेंट आ गई है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और स्पॉन्टेनियस लेबर के साथ, दोनों के फैलिक है, सीटीजी रीएश्योरिंग है, क्या करोगी? इरेगुलर वॉच कॉन्ट्रैक्शंस फॉर है प्रोग्रेस 30। ऑफ लेबर नॉर्मल। हम्म 36। अगर फैली में ट्रायल दे सकते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का हम्म एनसीडीए में? क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। तो इसमें जो है हम अवार्ड देंगे। जी बिल्कुल, हम इसकी वजाइनल डिलीवरी करेंगे, मैटरनल मॉनिटरिंग करते रहेंगे, बीपी पल्स, यूरिन आउटपुट की, आईवी एक्सेस। लेबर में आईवी जो गाइडलाइंस है वो बहुत थोड़े लोगों को कहती है लगाने के लिए। ब्रीच है, वी बैक है, ट्विंस है, पीपीएच का रिस्क फैक्टर है, ठीक है, पीपीएच। हाँ ओबीज है। ये 5 लोग हैं जिनको आईवी लाइन आपने लाजमी लगानी है। पेन रिलीफ के लिए आप उनको एपिड्यूरल दे सकते हैं। कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है, क्यों? क्योंकि एक बेबी की ग्रोथ कम है और एक बेबी की ज्यादा है। और इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन। फिर आपने बताना है कि व्हाट शुड बी डन वंस द फर्स्ट बेबी इज बोर्न। यू मे नीड सिंटोसिनॉल, मे नीड मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन और इंटरनल पोडेलिक वर्जन, stabilizing a artificial rupture of membrane. There is a small risk of cesarean section as well for the second twin, अगर वो घूम गया बाद में तो। डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विन, ब्रीच भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर एंड लो थ्रेश होल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा जी, अब ये जो पहला क्वेश्चन था, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा मैं उसकी हिस्ट्री लूंगी। ड्रग्स लाजमी लेनी है, स्मोकिंग, अदर रेलिवेंट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री। जो खदीजा आपने शुरू में पूछा वो बहुत अच्छा था कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट, देन आई विल टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री रिगार्डिंग। पहले सिम्टम को आपने पूछा कि ऑनसेट, सेवेरिटी और ड्यूरेशन पूछूंगी। हाँ वो बहुत अच्छा था आपका, कि मैं पहले सिम्टम्स को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि अच्छा उसमें ये भी होता है कि एनी, इफ शी कैन कीप एनीथिंग इनसाइड और नॉट, सॉलिड्स को है, लिक्विड्स को है, किस चीज को वर्जन ज्यादा है। ठीक है, फिर मैं उससे मेडिकल सर्जिकल सारी हिस्ट्री ले लूंगी। फिर मैं देखूंगी कोई एब्डोमिनल कॉजेज तो नहीं है वॉमिटिंग के। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना पहले क्वेश्चन में, वो एडमिशन था, आपने इसको दाखिल करना था। इवन नई गाइडलाइन भी यही कह रही है, अगर कीटोन्स पॉजिटिव है तो वो इंडिकेशन है दाखिले की ना। ठीक है, तो आपने एडमिट करना था, आपने एडमिट नहीं किया इसको। बाकी आपने फुल ब्लड काउंट किया, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट किया, एलएफटी, थायराइड फंक्शन और स्कैन किया। ठीक है, हाँ आईवी फ्लूइड शुरू करेंगे, फिर एंटीमेटिक्स देंगे, एंटासिड्स देंगे और थाइमीन देंगे और मे नीड स्टीरॉइड्स, अगर जैसे स्टेप अप तो करना पड़ेगा ना अगर वो नहीं बेटर होती तो। फिर इन पेशेंट मैनेजमेंट किस किस की होती है ये मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन किस किस का करना है। कॉन्टिन्यूस नोजिया, वॉमिटिंग एंड इनएबिलिटी टू टेक कीप डाउन द ओरल एंटीमेटिक्स। शी हैज कीटोन यूरिया और वेट लॉस ऑफ मोर देन 5%। कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड कोमॉर्बिडिटीज है, यूटीआई है, डायबिटीज है, या रेकरेंट नोजिया वॉमिटिंग डिस्पाइट एडिक्वेट एम्बुलेटरी डे केयर, या अगर कोई सिंगल ओरल एंटीमेटिक को नहीं करा तो कॉम्बिनेशन पे डाल दें बिफोर एडमिशन। ठीक है, तो एडमिशन की ये 4 इंडिकेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, जब हमने स्कैन आपको दे दिया तो उसके बाद आपने कहा कि मैंने रिकॉग्नाइज आपको करना चाहिए था कि मोनोकोरियोनिक ट्विंस हैं, आप कंफ्यूज हो गई, हमने आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि मदर नीड्स कंसल्टेंट लेड केयर, 2 to 3 वीकली एंटीनेटल विजिट्स विद बीपी, यूरिन और 2 to 3 वीकली ग्रोथ स्कैन्स। और एम क्या है? टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी 36 से 37 वीक्स इफ पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, ऑनगोइंग मैनेजमेंट, जब वो 34 पे आ गई तो हमने क्या कहा कि अर्ली स्टेजेस ऑफ टीटीएस में है, सो आई विल रेफर द पेशेंट टू फीटल मेडिसिन फॉर कंफर्मेशन ऑफ टीटीएस एंड फर्दर ग्रोथ मॉनिटरिंग। कंसीडर स्टीरॉइड्स, क्योंकि 34 पे है, स्टीरॉइड लाजमी कंसीडर करने थे, हमें किसी टाइम इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती थी। एडवाइस टू मदर ऑन मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग एंड फीटल मूवमेंट्स एंड सीटीजीज। हाई रिस्क प्रेगनेंसी सो नॉट सुटेबल फॉर होम बर्थ। वहां पे स्पेशली उनका कंसर्न यही था कि मैं घर में डिलीवरी करा लूं, तो आपने उनको बताना था कि नहीं, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक तो आप ट्विंस हैं, दूसरा टीटीएस डेवलप कर रही है, तो घर में तो आपने बिल्कुल डेवलप नहीं, डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, और लेबर में आपने कैसे मैनेजमेंट की वो ये हमने सारा बता दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपने किसी भी स्टेशन को कैसे क्रैक करना है। वो अब देखो, मैंने 3 तरह से आपको स्टेशन समझा दिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए तो क्या करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आए तो क्या करना है, और थर्ड में आए तो हमने क्या किया। ठीक है, क्लियर हो गया? हम्म यस मैम, यस मैम। गुड, सबको समझ यस आ गया? मैम। ठीक हो गया? अच्छा जी, आज के जो 4 जी। स्टेशन है वो हमने कर लिए। थैंक यू सो मच, जो लोग आए, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया। अब शॉर्ट केस संडे को मैं लूंगी, कल छुट्टी करेंगे। शॉर्ट केस में संडे को लूंगी, लेकिन 4 शॉर्ट केस दूंगी, फिर चारों वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपस में ही बातें कर रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल कॉमन शॉर्ट Okay. केसेस, डायबिटीज, अनीमिया, फाइब्रॉइड, और एक चौथा प्रोलैप्स कर लो। ठीक है, Hypertension. Okay. ठीक है, ठीक है। देखो, 2 गायनी के कर लो, 2 ऑप्स के कर लो। फाइब्रॉइड और प्रोलैप्स इसलिए मैंने रखा कि 2 गायनी के हो जाएंगे, और 2 ऑप्स के रख लो, एनीमिया और शुगर। देखो, जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना, हमेशा वो आते एग्जाम में, उनके आने के चांसेस हमेशा उतने ज्यादा होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, जो लेस कॉमन होते हैं वो उतने Okay. ही लेस कॉमन है टू अपीयर इन द एग्जाम। तो जो बहुत कॉमन है उनके ऊपर तो 1000% आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उसमें कोई माफी नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, Okay, ma'am. तो परसों का फिर टाइम मैं आपको देती हूँ, कि उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारे पास है ना 4 केसेस। ठीक है, तो अपने अपने नाम ये दे दो कि किस किस ने कौन सा केस करना है। डायबिटीज है, अनीमिया है, फाइब्रॉइड और प्रोलैप्स है, 4 केसेस करेंगे। ठीक है, 15-15 मिनट के केसेस होंगे, 1 घंटे में हम खत्म कर लेंगे क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।